आपने ये पूरी कोशिश की कि आपका डेटा जो है वो उनके डेटा से ज्यादा मैच हो, करेक्ट, ताकि जो डिफरेंस आए भी तो रियल डिफरेंस है और एक्चुअल डिफरेंस करेक्ट। जहां भी डिसीजन पॉइंट था कि क्या पुअर इस पे जीएसटी पे करता होगा कि नहीं करता होगा, अज्यूम कि वो करता ही होगा। हाँ, तो जीएसटी इटसेल्फ इज अ गुड कांसेप्ट और अ बैड कांसेप्ट। बॉटम 50% ऑफ द पीपल एंड अप पेइंग क्लोज टू 64-65% ऑफ द GST, overall GST that is generated in the economy, right? And top 10% people pay less than 3 or 4%. गवर्नेंस की बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? What is the performance? How would you judge the performance? I agree. So the overall report, of which the star data was this, the most talked about data of Oxfam was that GST is paid by poor. But the overall report was about survival of the richest, it was about inequality. तो क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होता है इन 2029 तो उससे जो ग्रोथ का जो स्पीड हमने पकड़ा है, जो पेस है, वो कम होगा या इट विल बी द सेम? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नमस्ते, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मेरा नाम प्रगल्भ झा है और आज हम बात करेंगे डेटा की। आज हम बात करेंगे कैसे इम्पोर्टेंट डेटास को हमारे सामने रखा जाता है और कैसे उन गलत डेटा को हम कंज्यूम करते हैं। ये डेटा बहुत मायने रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन, विद रिस्पेक्ट टू आवर ग्रोथ, और इसी मिसलीडिंग डेटा और जो पॉलिटिक्स है उसके अराउंड, इसे डिबंक करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर विदु शेखर सर। नमस्ते सर। सर एक मुंबई के बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन एसपी जैन में फाइनेंस के प्रोफेसर है और आज हम सर से जानेंगे कि किस तरीके से डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है और काफ़ी सारे डेटा वो गलत है। तो सर 2023 में एक डेटा आता है और वो डेटा जो है वो पूरे नेशन वाइड फेमस हो जाता है, नॉट ओनली नेशनली बट ऑल्सो ग्लोबली फेमस हुआ। ऑक्सफैम ने अपना एक डेटा प्रेजेंट किया था और आप उस डेटा को पढ़ते हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो काफ़ी गलत है और उसे आप डिबंक करते हैं और आप रियल डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो वो आइडिया क्यों आया, कैसे आया और कैसे आपने डिबंक किया? Thanks Pragal, happy to be here. Hi to all of your audience. So this data thing, Oxfam. We all know Oxfam is a international think tank and they have a worldwide focus but they have specific focus on India as well. And वो लोग कुछ studies करते रहते हैं. This was one of the studies that they did. And this report, Survival of the Richest, is what they called it, was released at the World Economic Forum in Davos. So it was a pretty important forum जहाँ पे ये release किया गया था, and this was released way back in January 2023, right? The interesting facts, there were many data that were there, but the most interesting fact about this report was that one data which was about GST inequality, which essentially said that 50%, bottom 50% of the people end up paying 60% plus GST of the country, right? ये डेटा काफ़ी घुमा था across political circles, across economics. Twitter पे it was shared for a long by many people actually, extensively shared, right? Why this is interesting is, or why this is very very interesting is that ये data, it's obviously wrong. GST as we know is a indirect tax. Indirect tax मतलब consumption point पे आपको जब भी आप consume करते हो तो आपको उस पे 12%, 18%, 5% kind of a tax उस पे जाता है. Lot of the time 0%, right? A consumption tax which is based on how much you consume, मतलब आप कितना खर्च कर रहे हैं उस पे based है. उसका proportion कैसे the bottom 50% is bearing the 60% load of that, you know? That's against common sense. But this data came and this was very very well circulated January 2003 and it kept on being circulated for a long period of time, right? In fact, several times in several friendly debates with friends and colleagues, this data came up and we discussed it. That is obviously wrong. How can you go about this data, right? But चलता रहा घूमता ही रहा. In fact, now it was close to more than a year and a half. And मैं 2-3 स्टूडेंट से बात कर रहा था regarding Indian political, economic and overall scenario of India, and they were putting this back to me, right? At that point I realized कि 1.5 साल हो गए हैं ऐसा डेटा के आए हुए, which is obviously wrong.
बट स्टिल सर्कुलेट होता रहता है। हाँ, तो इसका तो रियली कुछ करना पड़ेगा, यू नो। और मतलब Because- सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बट वो 1 साल तक किसी ने उसके बारे में बात नहीं किया, चर्चा नहीं की, और किसी ने ये नहीं कहा कि गलत है। हाँ नहीं, तो इसके बारे में बात हुई, चर्चा हुई, बट सब कहते हुए कि सही है, यू नो। अच्छा। इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन लोकसभा ऑन दिस, वेयर इट वाज सेड दैट दिस इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट कि बियॉन्ड नहीं जाएगा, यू नो। एंड द प्रॉब्लम इज कि देखो क्या होता है ना कि वन ऑफ द, हम लोग इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, द वे यू गेन नॉलेज इन सिंपल फॉर्म, कहाँ से आप नॉलेज निकालते हैं। सो वन ऑफ द थिंग इज अथॉरिटी से, यू नो। सो कोई चीज लिखित आ जाता है ना, समथिंग दैट कम्स इन अ रिपोर्ट। ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट था, तो नो पीयर रिव्यू, वैसे पीयर रिव्यू के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट नो पीयर रिव्यू, नो वेरीफाइड बाय एनीथिंग, और रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं मेथोलॉजी ऐसा ग्रेड करके दिया नहीं है, इस डेटा पे आए कैसे कुछ कहा नहीं है, नथिंग नथिंग नथिंग, यू नो। बट एक जगह लिखा हुआ है, यू नो। सो किताबी ज्ञान हो गया है वो जी। और किताबी ज्ञान हो गया तो सब वही मानते हैं, कुछ भी बोलो तो बोले नहीं नहीं ऐसा तो है, ऑक्सफैम ने कहा। अरे ऑक्सफैम कौन होता है कहने वाला? बट नोबडी इज आस्किंग दैट क्वेश्चन, यू नो। So it was denied by the government in the parliament itself, but it was not directly denied in the sense that there was no alternative number that was suggested. And that is the main thing, you know, कि एक नंबर अभी दिमाग में घुस गया है, तो उसको डिबंक करने का तो बेस्ट मेथड यही होता है कि आप ऑल्टरनेट नंबर, जो एक्चुअल नंबर है वो बताओ जी। अदरवाइज आप बस बोलोगे कि ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट लगता नहीं है, ये कॉमन सेंसली करेक्ट नहीं है, बट फिर कीप रेफरिंग टू, बिकॉज नंबर तो आ गया है मार्केट में और किताब में लिख चुका है। सो केप्ट ऑन गोइंग एंड फाइनली 1.5 years हो चुके थे, उसके बाद ही मेरे को कोट किया जा रहा था। आई वाज लाइक कि नहीं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि लेट्स एक्चुअली ड्रिल डाउन and find the actual number, even though it's obviously wrong, and I am pretty sure that the number that will come would be very different from what Oxfam came to be. But exact number क्या होना चाहिए? Let's dig that down. That's what I finally ended up doing. So sir, before we go ahead, Oxfam इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, उसके बारे में अगर आप ब्रीफ दे सके, और ये डेटा जो ऐसे डेटा आते हैं उससे आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, अगर उस पर ब्रीफ दे तो हमारे जो ऑडियंस है उनको समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। राइट। सो ऑक्सफैम इज अ इंटरनेशनल थिंक टैंक। अब थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? थिंक टैंक का मतलब बस यही होता है कि 5-6 लोग मिल गए हैं और साथ में वो सोच रहे हैं। थिंक टैंक, यू नो, तो क्या सोच रहे हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? सो टिपिकली आई हैव रियली फाउंड, so there's no direct allegations that I can put on Oxfam per se, but typically I have rarely found that these think tanks are really objective think tanks. Okay. Typically certain kind of a thinking को बढ़ाने के लिए इनको promote किया जाता है. That's what and they tend to have certain ideology. Okay. उस पे वो लोग continuously research कर करके डेटा वगैरह सब provide करते रहते हैं, रिपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं. एंड चूंकि वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है, बिकॉज बीइंग अ थिंक टैंक, तो वो इंस्टीट्यूशनल पावर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू गैदर रिसोर्सेज, लोगों को इकट्ठा करने का, इंस्टीट्यूशनल पावर इन टर्म्स ऑफ हैविंग द अथॉरिटी, कि हम लोग एक थिंक टैंक हैं जो सोच समझ के काम करते हैं, बिकॉज हमारा नाम ही थिंक टैंक। जी जी, राइट। So these things act as a way for them to take up topics, take up things, and have a certain power in maintaining or contributing to overall narrative of what things are going around. चीजें क्या है, क्या चल रही हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, चाहे गलत हो या सही हो, सेकेंडरी बात है, but they get this power. जी. A lot of time they might be doing correct as well, so I'm not denying that, but they do get this power. Okay. And interestingly, Oxfam का नाम भी Oxford टाइप का लगता है, जी. But I don't think so there is any correction, right? So this is a rub-off effect. यहाँ Oxfam है, Oxford टाइप का लगता है, तो ये तो कोई बड़ा ही चीज है and stuff like that. But essentially it's just a collection of people who keep on doing some research and they keep on coming with the report. What is the authenticity of the report? Nothing. They are the authenticity of the report. So there is no specific authenticity. Ideally authenticity आनी चाहिए कि वो लोग अपना रिपोर्ट बना रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, तो पूरा ट्रांसपेरेंटली करें. But hardly any transparency is there. They state their conclusion. They state something in between, but hardly anything that they substantiate. But very, very powerful institution in the global scenario. Okay. A lot of times very well funded as well. Okay. तो पैसा भी इनके पास खूब रहता है. और if you look at it more politically, more or less इनका रोल रहता है कि ये लोग जो है सो they provide the support, the intellectual support for the ideologies that they believe. Okay. So you can call that as what a think tank or what a Oxfam could be. Oxfam India पे I think government of India has put on some restrictions as well. So there have been a lot of
wrong news related to Oxfam India for some time. But it's an international think tank, तो अपना काम करते ही रहते हैं. और ये आम लोगों के लाइफ पे कैसे ये इम्पैक्ट, ऐसे कोई इम्पैक्ट है डायरेक्टली? Of course ना, अब क्या चीज चल रहा है, you know, कोई चीज अच्छी है कि नहीं अच्छी है, लोग कैसे समझते हैं? तो we depend on people, we depend on those researchers who come up with something and tell us कि नहीं देखो ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है. आपको क्या मालूम है कि इंडिया की इनइक्वालिटी का लेवल क्या है? क्या ये यूएस से ज्यादा है या यूएस से कम है? आपको क्या मालूम है कि ग्रोथ कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? यू नो, ये सब चीज कहाँ से पता चलता है? ये सब चीज पता चलता है कि लोग बातचीत क्या कर रहे हैं. तो लोग बातचीत क्या कर रहे हैं, इससे आपका व्यूज फॉर्म करता है. व्यूज कहाँ से आता है? तो दीज आर द पीपल हु tend to try and shape these views. Okay. The ulterior motive of course becomes कि views को आप change करके या अपनी तरफ guide करके क्या पाना चाहेंगे. तो typically it's some kind of a political power or political force or the ability to influence people. That's what they look at, right? So सर तो अगर हम डायरेक्टली डेटा की बात करें तो गलत डेटा क्या था? अगर हम नंबर्स की बात करें, क्या गलत डेटा था, और उसके ऑपोजिट में आपने जब इसे रिसर्च किया तो सही नंबर्स क्या सामने आए? और क्योंकि आपने जीएसटी की बात की, तो जीएसटी इटसेल्फ इज अ गुड कॉन्सेप्ट और अ बैड कॉन्सेप्ट? Yes, so the Xform का specific data in which we looked at was that bottom 50% of the people end up paying close to 64-65% of the GST, overall GST that is generated in the economy, right? And top 10% people pay less than 3 or 4% of the GST. So essentially it means that GST as a tax इतना गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये गरीबों से ही कलेक्ट कर रही है. मतलब ऐसा ही नहीं कि अब गरीबों से, मतलब इतना गरीबों से कि बस गरीबों से ही कलेक्ट कर रही है और किसी से कलेक्ट ही नहीं कर रही है टैक्स. So that was the picture that was presented. The report was bigger in terms of survival of the richest. It also talked about the overall inequality and stuff like that, which we will come to. But ये डेटा देख लो तो फिर बाकी सारे रिपोर्ट पे तुमको ग्रेव डाउट आने लगेगा कि ये ऐसा काम इधर किया तो उधर क्या हो सकता है, राइट? सो दिस वाज द डेटा. ऑफ कोर्स एज वी डिस्कस, प्रॉब्लमेटिक फैक्टर इसमें ये है कि कंज्यूम तो ज़्यादा रिच पीपल करते हैं, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा टैक्स उनको देना चाहिए. बट ये इंटायरली डिफरेंट पिक्चर वाज बीइंग पेंटेड. लॉजिकली देखें तो अगर हम कहते हैं कि जीएसटी एग्जिस्ट करता है और जीएसटी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लागू होती है, तो स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो एक जो फाइनेंशियली स्टेबल क्लास है उनके पास होगा. सो दे विल बी द वन पेइंग more who spends should pay more, and that's so ideally richer spend more. Ideally guys, it's obvious richer will spend more, poor would spend less. In fact richer GSTs भी आपको mostly branded product वगैरह पे होती है. तो आप खुला चावल लोगे तो उसमें GST नहीं, पैकेज चावल लोगे तो GST, you know. And poor actually consume खुला चावल, they don't consume ये, तो उनको तो GST का भार completely, मतलब hardly there should be the case, right? And सारा mostly should be contributed by the richer. That's obvious, or that's how it should work. But it was very very against that logic, right? Of course we had political narratives of Gabbar Singh tax as well, वगैरह वगैरह, so that it kind of fed into that per se, right? So what I had to look into deeper into it. So what I did was, this is what they also claimed that they did. Okay. So what they claimed was, how did they got this data? They took up the NSSO survey, which is one of the largest social survey that happens in India, and it estimates the consumption pattern of whole of the population in a decile format. So every 10% population क्या consume करता है. Very very extensive survey. I think the sample size is pretty large, in lakhs or something of that sort. Right, so it is the most largest survey, and most of the social researchers refer to this survey only when they do any kind of a social study on India per se. So they said that they had referred to this survey. उन्होंने वहाँ से कंजम्पशन बास्केट में देखा है, उस पर ही अपना स्टडी किया है, उस पे बेस पे डेटा है. So I also did the same. ठीक है, इतना ही बोला था बाद में. उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने रिजल्ट का टेबल दे दिया था. बीच में क्या हुआ उन्होंने कुछ नहीं बताया था. कहीं एक डिस्क्लेमर ऐड कर दिया था कि we have taken select consumption item, not all consumption item. तो ठीक है, मैं वही करता हूँ. तो मैं सेलेक्ट क्यों करूँ, मैं सारा देख लेता हूँ, बिकॉज अगर डेटा चाहिए कि जीएसटी कौन कितना पे करे, सारे को देखने का. So NSSO estimates that there are approximately 400 plus items of consumption that Indian population consumes. Now these are consumption items, खाने पीने वगैरह वगैरह. This does not include real estate kind of a thing and other investment kind of a thing. But more or less whatever is consumed by India, it kind of does a survey of that. So 400 plus items थे.
So we went down deeper into it, and there was one intern from Narsi Munji, Alka Gupta, which helped me in this exercise. So we dig up that survey. उसमें decile wise सारे 400 आइटम का लिस्टिंग कौन कितना कंज्यूम करता है, और वो उन्होंने वैल्यू वॉल्यूम दोनों दे रखा था. तो वैल्यूम लेके वैल्यू लेके उस पर फिर उसका सारे आइटम्स का जीएसटी फाइंड किया हमने जी. फिर उसको अप्लाई किया, एंड देन वी एक्चुअली गॉट पर डेसाइल वाइज, पर डेसाइल इज इन पर 10% चंक ऑफ पॉपुलेशन वाइज कौन कितना जीएसटी पे करता है. So what we were a bit conservative in estimating, because either way we had to estimate कि poor लोग कितना देते हैं. So we thought we'll err on the side of caution. So for example open rice है, उसका नहीं होना चाहिए, and we assume, उसमें लिखा नहीं कि open rice consume करते हैं, closed rice consume करते हैं. So we assume कि closed packaged rice ही खाते हैं, उन पे GST डाल देता हूँ, right? So wherever there was any decision to be made, we were conservative in a sense that we assume कि there GST is being paid. So basically what I can understand is आपने ये पूरी कोशिश की कि आपका डेटा जो है वो उनके डेटा से ज्यादा मैच हो, ताकि जो डिफरेंस आए भी तो रियल डिफरेंस है और एक्चुअल डिफरेंस करेक्ट. जहां भी डिसीजन पॉइंट था कि क्या पुअर इस पे जीएसटी पे करता होगा कि नहीं करता होगा, एज्यूम कि वो करता ही होगा, यू नो, ये खुले चावल पे नहीं करता होगा. अब पीडीएस है, जैसे पीडीएस में तो ऑफ कोर्स नहीं करता होगा, तो पीडीएस पे हमने अज्यूम किया बिकॉज़ पीडीएस इज कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. बट अदरवाइज कोई भी कंजम्पशन आइटम है, वी अज्यूम खुला नहीं है, वो क्लोज्ड ही है. अब देयर आर सर्टेन आइटम जहाँ 1000 रुपीज से कम है तो उस पे जीएसटी कम है, 1000 रुपीज से ज्यादा का आइटम है तो हम वी अज्यूम कि 1000 रुपीज से ज्यादा का आइटम वो खर्चा करता है. अच्छा, तो आप सारे एक्सट्रीम्स में ही में हमने लिया कि देयर इज नो स्कोप ऑफ फर्दर लेसर देन दिस का स्कोप नहीं होगा, सॉरी मोर देन दिस का स्कोप नहीं होगा, लेसर हो सकता है, सो मोर का पर स्कोप नहीं. So keeping that conservative view in mind, it required some amount of effort to go sift through this data, 400 plus tens of 4,000 data points and stuff like that, and then applying all the GST rates. And what came out was very, very interesting. It was so different from what Oxfam was saying, and it was expected kind of a thing. So even after being so conservative and putting all possible load on the poor people, it turned out that the bottom 50% poor of India, which Oxfam said that they spend or they contribute 60% of GST, actually contributed 9.6%. इतना बड़ा difference. But even better, what was the most striking data, that all people combined, household combined, contributed only 34% of the GST. Okay. Right. So they were saying that bottom 50% contribute 60% plus. Actual data is that all people combined contribute in consumption, contribute 34%, again less than their 35% approximately. So all people combined pay less than what they said bottom 50% was paying, right? Question is कि बाकी कहाँ से आता है? So बाकी आता है इन्वेस्टमेंट की, जैसे रियल एस्टेट खरीदा, ये बिल्डिंग खरीदी, उसमें पे किए थे आप जीएसटी वगैरह. बाकी आता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन से, कि आपने जो है सो फॉर एग्जांपल रोड बन रहे हैं, राइट, या मशीन्स बन रही हैं, वो किसी और कंपनी को बेच कर रहा है तो उसका जो आ रहा है. कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं, फर्म्स जिसमें वो कंज्यूमर से डील नहीं करती हैं, वो लोग दूसरे फर्म से डील करती हैं, तो वो लोग फर्म्स दे रहे हैं. तो फर्म्स वाला एक पार्ट आ गया. बिग इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ पीपल ऑल्सो, जो पीपल रियल एस्टेट वगैरह में डाल रहे हैं, कहीं डाल रहे हैं, एनीवेयर एल्स दैट दे आर इन्वेस्टिंग. ये कंजम्पशन ओनली था, यू नो. So which also is a place where it's all top guys who pay, right? And government consumption. So government खुद भी तो कंज्यूम करती है, right? अब गडकरी साहब रोड बना रहे हैं तो उसमें whatever contracts are going out, उसमें GST, या government departments अपना, you know, all the machinery or stationery or whatever they are buying and stuff like that. So the remaining 60+% of GST comes from them. Okay. Right? So household contributes only 34%. तो वो तो 60+% का तो स्कोप ही नहीं है कि बॉटम 50% कंट्रीब्यूट करेगा, राइट. विद इन दैट 10% approximately, less than 10, 9.6% odd number was there, that is paid by the bottom 50%. सर तो हम अगर बात करें परफॉर्मेंस की, डेटा की, जीएसटी की, तो बात आती है गवर्नेंस की, ठीक है. क्योंकि डेटा निकला है और डेटा में जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि करंट गवर्नमेंट जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है. तो अगर हम गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की या गवर्नेंस की बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द परफॉर्मेंस? हाउ वुड यू जज द परफॉर्मेंस? आई एग्री. सो द ओवरऑल रिपोर्ट ऑफ व्हिच द स्टार डेटा वाज दिस, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डेटा ऑफ Oxfam was कि जीएसटी इज पेड बाय पुअर्स,
but the overall report was about survival of the richest. It was about inequality. And स्टार डेटा का ये हालत है, तो ऑफ कोर्स जो बाकी के डेटा से उन्होंने काम किया होगा, गॉड नोस क्या काम किया होगा एंड स्टफ लाइक दैट. So very difficult to depend on them. But denying that inequality exists is also not correct, right? And therefore, there are the way we should tackle it is both two. Does inequality exist, and what can be done about it? Where the role of the governments also come in. Okay. Right? So, does inequality exist, or why does the inequality exist in itself? The thing is that any skill-based, competitive or semi-competitive or even partially competitive societal setup or any setup would automatically have winners and not so winners. So it's wrong to say them as losers, but winners of the game and those who are not able to win the game, right? Which automatically creates a hierarchy, and which will automatically lead to forming of a so-called inequality, right? So inequality, the way it is portrayed today, is not very different from a kind of a hierarchy of people, So, and no societal setup, whether it's government, whether it's institutions, whether it's anything, can survive without a hierarchy. So even hierarchy is seen even in the animal kingdom. So you would have alpha male, this, that, whole group ka pack ka ek leader hoga. The moment there is a phenomena of a leader or someone, you automatically are talking about hierarchy. The moment there is leader and followers, you can argue that this is unequal. Why should he be the leader? Why should everybody be the follower and stuff like that? So any societal setup would have a hierarchy. Any skill-based setup would have a inequality built into it, emerging as a hierarchy out of it, right? So inequality is the nature of life itself. You cannot have everybody equal in all forms, right? If you make everybody equal in all forms, then there is collapse of the system itself. You can argue that Maya itself, if you take a bit of a detour into more deeper philosophy, Eastern philosophy, Maya itself represents inequality. Okay. Right? Because Brahma is all equal. The one who is beyond, that is one great, who is there everywhere, is all equal. Maya is the veil which makes things not equal. So I am a man, she is a woman. This is all the differences that arise is because of Maya itself. So, and Maya is what world is, right? So hierarchy and equality are the features of the world. These are not errors of the world, these are features of the world. That is how it functions, right? So why would I aspire to, go become the CEO? Because CEO is at the top, and CEO is different from a manager. He is unequal, he is a higher equal in the organization. So inequality is a feature, right? Why as a company I would want to compete and get the best product out to you? Because there is another company which is ruling the market. It's an unequal setup. I want to compete, put my best in to get beyond that and stuff like that. And then I will be the big guy out there. Yes. So I'll be the bigger one. I'll be the really more unequal one, right? So inequality is a feature of the world itself, of society itself per se, right? The cost of inequality should not be such that you cannot get a minimum basic life. That is the thing, right? Okay. So inequality exists, that's the nature, but the fallout of inequality should not be so severe that you die only, or you're not able to eat only, or you're not able to function only. No. That should not be the extent of inequality, right? And that's how it needs to be tackled, right? Okay. So, and that's where government comes in. Left to itself, society will produce inequality. Right? Left to itself, more skilled people would go up, would climb up, and it should happen such. Left to themselves, those who put in more hard work will go up. Yes. Those who don't put in hard work will come down. And that's how it should be. That's how a healthy society will function, right? So then how do we reduce the impact of this inequality so that even those who are left behind are not in a position that they are completely dissipated or completely in such a bad position that they can't lead their day-to-day life. That's where government comes into the picture. A beneficial government, a benevolent government should come into the picture, right? Their duty is what? That the inequality produced is addressed to the extent that the survival is not difficult. And that the opportunity to work is available for, or opportunity to climb up is available to you if you want, if you have that kind of a skill set and if you want to put in that effort. Okay. There are two aspects that governments come.
The more basic aspect, of course, is that the government should take care that the inequality fallout is not such that it should lead to a scenario where you don't survive. Okay. And this is where I feel that the right form of governance is what I call as capitalistic socialism. Right? So what is this capitalistic socialism? We all know what is capitalism, what is socialism. Right? Capitalism is typically US, whosoever competes, goes up, he gets everything. The competition is the key. Private parties, they all compete on their own capitalistic nature. Socialism is that there is a benevolent government which distributes the whatever wealth there is to everybody and stuff like that, right? The thing is, capitalism is very, very good in wealth generation. It produces wealth like anything because it promotes competition, it promotes people who are skilled, it promotes people who are hardworking, it will give them all the resources that is required, they will accrue and they will climb up and they will produce very, very good things, right? So they will produce great things like iPad or iPhone and SpaceX and whatnot. This is what capitalism does. It's very good in wealth generation, but it's extremely poor in wealth distribution. So what happens, the winner takes it all kind of a scenario prevails out there, right? On the other hand, socialism by nature is about wealth distribution. So very good in wealth distribution. That is why it exists. But extremely poor in wealth generation per se. Because the focus is entirely on distribution itself. Focus is take the resource, give it to everybody. Irrespective of what they are, how skilled they are and not skilled they are. So this discourages the people who are skilled. This discourages hard work because everybody is going to get the same. So why should I work more? Right? So if I announce in my class that whatever everybody should give exam, and I will take the paper, but I will give everybody the average marks. So there is a direct disincentive not to study, right? मैं फिर क्यों पढ़ूं जब सभी को एक ही मार्क मिलने वाला है तो कोई नहीं पढ़ेगा, But if मैं बोलता हूँ topper, there is a position called as a topper which will earn you this things and which will earn you special attention from me and this and that, which will earn you badge of honor and this and that, and people will, the companies will run behind you for jobs and stuff like that. Then everybody is working to be the topper. Yes. Topper will emerge only one, but everybody is working to be the topper. Combined effort जो है वो the average automatically goes up. So this is capitalism versus socialism, right? So one is good in distribution, one is good in generation. And neither of them can work in isolation. Okay. Right? Capitalism on its own level will create a society so unequal that those who don't have the skill or can't work hard, they would be the last one out. They may not even survive. Pure form of capitalism, if you let it be, it's not very different from colonialism. राइट उनका तो यही है कि हम भी काम कर रहे हैं, हम बंदूक लेके आए, हमने बंदूक बनाया तो हम तुमको बंदूक के दम पे बोले कि बनाओ, स्लेव बनो मेरे. दिस इज प्योरेस्ट कैपिटलिज्म, राइट? कि मेरे साथ मैं ही आई एम द इनोवेटर, मैंने बंदूक बनाया तो मैं बंदूक चलाऊंगा, तुमने बंदूक नहीं बनाया तो तुम मेरे गुलाम. तो जो डिफरेंस है वो और बढ़ते जाएगा, जो गैप है वो लंबा हो जाएगा. कॉलोनियलिज्म इज फाइनल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म. ओके, राइट? इट कैन बी आर्ग्यूड, राइट? सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड, डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अरे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले कुछ चाहिए तब ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ देयर इज नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट तो इक्वल सोसाइटी का मतलब क्या है? एवरीबॉडी विल बी इक्वली पुअर और देयर विल बी इक्वालिटी इन द नेम्स ऑफ एवरी, सब लोग भूखमरी में मर रहा है जी, क्योंकि किसी ने खाना बनाया ही नहीं. तो कोई खा ही नहीं पा रहा, सबको सेम खाना देंगे पर हम खाना ही नहीं बनाएंगे, सब मर जाओगे यार, इक्वल हो जाएगी सोसाइटी, एवरीबॉडी इज डेड, राइट? एंड देयरफॉर नाइदर ऑफ दिस इज अ गुड प्रिस्क्रिप्शन टू हैव. What we see and world is maybe moving towards that is we need both of them working together. But which one comes first, right? And in it, it's capitalism that comes first. Distribute करने के लिए पहले generate करोगे तब आप distribute करोगे. Resource होगा तब ना generate, तब ना pass on करेंगे. So first you have to generate, and then you have to distribute. And therefore, what I say is capitalistic socialism, right? And what is good about today's government of India is that it is inherently capitalistic socialistic. Okay. Capitalistic socialism का proper example is the current government. In fact, I can argue that Indian society traditionally has been a capitalistic socialism society, right? So the work of government was never to do business, and the business community was entirely separate and left on its own to work, and you just pay the tax. The work of the government was actually socialistic in nature. So benevolent king जो दान देता है, दक्षिणा देता है, लोग प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा का टेक केयर करता है. That's ideal of our culture, right? Indian culture. And at the same time business community है बहुत बढ़िया, no vilification of that community as well. बहुत बढ़िया, आप काम कीजिए, आप जनरेट कीजिए, आप नए नए चीज लाइए, आप ट्रेड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, समृद्धि लाइए, आप समृद्धि बांट देंगे हम.
right? So genetically, Indian culture has been a capitalistic socialism kind of a scenario. Okay. And the government since 2014, the current government seems to have adopted that well enough, right? Okay. So if you look at the current prime minister, he has got a series of, in fact, first he did socialism. He has a series of socialistic programs, and kind of socialistic programs that have never existed in India before. Pradhan Mantri Awas Yojana has existed, but the kind of delivery that has been done by government is unparalleled. In fact, it can be argued that one of the reasons why the government keeps coming back, so there is pro-incumbency for the government, even in current form, third term getting 250 is still 240 is still a pro-incumbency only, is Modi schemes. Modi schemes are one of the crucial reasons for the pro-incumbency of current government, right? And that is then purely socialistic impact, right? And socialistic impact done really well. तो डिजिटल के थ्रू डीबीडी कर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे, बीच का सारा करप्शन खत्म कर देंगे, राइट? सो दिस इज अ प्रॉपर सोशलिस्टिक गाय. वो सोशलिज्म ऐसे नहीं पैसा देना है, पैसा सही जगह पहुंचे भी, इसका भी एश्योरेंस देना है, राइट? एट द सेम टाइम लुक एट हिम इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्रियलिस्ट. डू यू सी हिम ब्लेमिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इन एनी फॉर्म, राइट? अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं रहेंगे तो जनरेट कहाँ से, टैक्स कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा टैक्सेशन तो वो लोग देते हैं. Our analysis also says that the top people, so 34% comes from households, 66% comes from essentially the businesses only, right? So his PLI scheme, so he has a host of schemes for generation purposes, encouraging industry, encouraging the entrepreneurial class of the country, startup India se lekar all the way to encouraging various industry with PLI schemes and stuff like that. Also getting outside businessmen to come to India and establish factories in India. जनरेट करो जितना करने का, डिस्ट्रीब्यूट तो हम कर ही रहे हैं, राइट? सो दिस कंबाइंड फैक्टर हैज लेड टू गवर्नमेंट व्हिच हैज फेस्ड कंटिन्यूअसली हैज प्रो इनकम्बेंसी टुवर्ड्स दैट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द इनइक्वालिटी. ओके, राइट? अब बात ये है कि वर्ल्ड फैक्टर्स में ये डिक्रीज ऑफ इनइक्वालिटी आएगा नहीं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्ल्ड का इनइक्वालिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. इनकम की इनइक्वालिटी पर डिपेंड करता है. अब इधर मोदी जी तो लोगों को अनाज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, राइट? तो खाने का दैट ऑफ कोर्स इज डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी, बट देयर इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग ना. दे आर गेटिंग फूड, दे आर गेटिंग एसेट्स, बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है, पर वो जो ग्रोथ है वो नहीं आ पा रहा. 3 लाख का घर मिल गया लोग. डू यू थिंक 3 लाख का, दे आर आई डोंट नो 10-20 crores ऑफ होम्स हैव बीन फॉर्म्ड इन इंडिया, राइट? 5 crore प्लस डेफिनेटली. तो उससे इनइक्वालिटी कम नहीं हुई होगी इंडिया में? डू यू थिंक दैट इज द केस? मैसिवली कम हुई होगी. अगर 5 crore अगर बढ़ गया तो जो बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए जो एफर्ट डालनी होती है उसका काम सरकार नहीं कर रही, तो अब आपको जो है बेसिक नेसेसिटी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने आप को आगे ले जाने पे, अपने फ्री टू डू व्हाट यू वांट. यस. अब बेसिक मेरा घर और खाना मेरे को मिल गया, उसके बाद मैं दिन भर सोना चाहता हूँ, सो लो यार, क्या कर सकते हैं? उसके बियॉन्ड तुम नहीं जाओगे, बट इतना तो मिल जाएगा तुमको. सो यू विल नॉट डाई ऑफ इनइक्वालिटी, बट उसके ऊपर इफ यू डोंट फाइट देन यू रिमेन देयर, राइट? But that is the bottom. Bottom is very, and if there's so many 3 lakh, and this is not small, 3 lakhs के houses लोग construct हुए हैं, and poor people के substantial construct हुए हैं. Across communities, across religions, people have been benefited out of this Modi scheme. 80 crore people getting अनाज, उससे inequality कम नहीं हुई है क्या? You are saying कि India has seen the largest socialistic distribution in its history in last 10 years, and inequality has increased. तो आप दो स्टेटमेंट, ऑपोजिट स्टेटमेंट को एक साथ दे रहे हो. करेक्ट. ओके, इट कांट बी पॉसिबल. तुम्हारा मेजर गलत है. तुम इनकम पे ही मेजर कर रहे हो. तुम ये नहीं मेजर कर रहे हो कि ओवरऑल वेल्थ कितना, एसेट कितना जनरेट हो गया है. जी, यू नो, देयर इज अ बिग एसेट, हाउस मेरा बन गया, तो लोग तो कमाते खाते आधा चीज तो घर ही बनाने के लिए. जी, यू नो, व्हाई आर यू अर्निंग, व्हाई आर यू सेविंग? यू गेट द हाउस ही मैंने बना के तुमको दे दिया. सी द काइंड ऑफ फ्रीडम एंड द काइंड ऑफ ये दैट यू आर गोइंग टू गेट. मे बी द करंट जनरेशन रिलैक्स करके सोएगा, और हाउस तो मल्टीपल जनरेशन तक चलेगा ना. नेक्स्ट जनरेशन तो ऐसे पैदा होगा जिसके पास घर है ऑलरेडी, तो वो बैठ के एक्चुअली में पढ़ेगा. हाँ, राइट? उससे प्रेशर नहीं रहेगा कि अब घर नहीं है तो कहाँ जाए, क्या करें, एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो. सो there has, the inequality is a feature. It needs to be of a capitalistic system. It needs to be addressed via socialism. The current government is doing extremely well on this count. Okay. And I strongly feel, and maybe we should do a study on this sometime, that the inequality of India has substantially come down in the last 10 years. Though it is not portrayed as such in larger narrative, world indexes and stuff like that. Okay. Sir, जब हम
इन सब स्कीम्स की बात करते हैं हम्म, तो एक और बात किया जाता है कि फ्रीबी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं वो चल रहा है और ये कोई भी सरकार हो हर कोई ये चीज करती है। तो इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पे आपका क्या, क्योंकि मैं इसे सोशल स्ट्रेटेजी तो हुआ ही बट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के आड़ में जो है वो किया जाता है, तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है, किस हद तक सही है, अगर गलत है तो किस हद तक गलत है? No, very nice question actually, and this is socialism going berserk, right? तो capitalism going berserk से क्या होता है आप समझिए, अमीर मतलब the top and bottom का difference would be very high. Socialism going berserk का क्या होता है? Spoiler alert, पुअर ही का खराब होता है, okay? कैसे खराब होता है? And that's why I actually like the Modi schemes and the way current Prime Minister has done the socialism that he has done, right? So he has focused more on distributing in kind, right? Political pressures have led to certain direct cash distribution as well, but largely the Indian socialistic focus is to distribute in kinds. Difference क्या है? कैश अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को डायरेक्टली हाथ में कैश देने लगते हैं जी, तो पैसा तो पेड़ पे उगता नहीं है, पैसा तो लिमिटेड है, तो पैसा आप ज्यादा लोगों के हाथ में दे दीजिएगा, कहीं खर्चा हो जाएगा, दैट विल डायरेक्टली रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन, राइट? वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन की मार सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? पुअर को पड़ती है। क्योंकि मैं इफ द रिच गाय का चावल का दाम 50 रुपया बढ़ गया, क्या फर्क पड़ता है उसको यार, है ना? तो पुअर को एक्चुअली इन्फ्लेशन के कारण से खाना कम हो जाएगा, राइट? सो ऑल दिस फ्रीबीज टू द एक्सटेंट दैट देयर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कैश डिस्ट्रीब्यूशन or directly cash benefits that are going, they are socialism gone berserk. There is no good outcome of it. Inflation is the only fallout, and the problem of inflation is that it penalizes the poorest the most. सर, तो हमने बात किया है गवर्नेंस की, हमने बात की है डेवलपमेंट की, हमने बात की है नैरेटिव की, तो क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होता है इन 2029 तो उससे जो ग्रोथ का जो स्पीड हमने पकड़ा है, जो पेस है, वो कम होगा या इट विल बी द सेम? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लुकिंग देखते हैं अगर अभी क्या बातें अपोजिशन करती हैं, क्या बातें गवर्नमेंट करती है, एंड इफ उससे आगे प्रोजेक्ट करें कि क्या होने की आशंका है, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट चेंज या गवर्नमेंट चेंज करती है, अपोजिशन गवर्नमेंट में आती है तो क्या होगा, एंड अगर करेंट गवर्नमेंट रहती है तो क्या होगा। सो करंट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खूबी है दैट ये गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से जो भी गवर्नमेंट्स बने हैं उसमें सबसे अधिक बैलेंस्ड गवर्नमेंट। बैलेंस्ड इन व्हाट? जो अभी हमने बात किया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। सो कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट का जो महीन बैलेंस होता है ये करंट गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, एंड यही रीजन है कि बार बार गवर्नमेंट थर्ड टर्म आ गई है गवर्नमेंट। दैट छोटी मोटी बात नहीं है फॉर इंडिया, थर्ड टर्म आना गवर्नमेंट को, इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल टॉक, यू नो। नेहरू जी के बाद दिस इज आई थिंक पहली बार है जब इतना लॉन्ग टेन्योर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का रहा है, राइट? तो ये बैलेंस जो उन्होंने बना के चला है कि हम इंडस्ट्री को भी प्रेस करेंगे, इंडस्ट्री को भी आगे लाएंगे ताकि वेल्थ जनरेट हो, लोग पैसा प्रोड्यूस हो, पैसा बने, पहला पेड़ लगाएंगे पैसे का, और सोशलिस्टिकली वो पैसा को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ये बैलेंस आज तक किसी गवर्नमेंट में इससे बेटर नहीं रहा, राइट? एंड इसीलिए द ग्रोथ रेट देख लो, इन्फ्लेशन देख लो। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट पहले वो गवर्नमेंट है जिसने हाई ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन भी रीजनेबली कंट्रोल करके रखा है। ओके। अदरवाइज आप देखोगे या तो इन्फ्लेशन ही ऊपर भागते रहता है ग्रोथ के साथ, या ये गेम जो है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, ग्रोथ भी देखना है, ये करंट गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है। तो ये दोनों का बैलेंस इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एंड फॉर अ कंट्री जो मतलब कितने लोग हैं, 140 करोड़ हो गए हम लोग, 140 लोगों की कंट्री में अगर ये बैलेंस ठीक से नहीं बनाएंगे, और आज के समय में जब पॉपुलेशन बड़ा इस लेवल पे है तो अनरेस्ट का बहुत हाई चांसेस है ना। तो इन दैट सेंस अगर ये गवर्नमेंट चेंज करती है तो ये बैलेंस बिगड़ने की पूरी आशंका है। ओके। और अपोजिशन जिस तरह की बातें बोलता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरह की बातें बोलती हैं, एक तो पूरा होल होस्ट ऑफ अपोजिशन में आप देखोगे लीडर्स को, देयर आर सेवरल लीडर्स जिनको करप्शन का जिनका रिकॉर्ड काफ़ी रहा है। करप्शन से दिक्कत ये होती है, करप्शन से क्या होता है, करप्शन से मनी कोई प्रोडक्टिव काम में नहीं जाता,
वो करप्शन मनी से कुछ इंडस्ट्री नहीं बन रही है, वो करप्शन पॉकेट में जा रहा है, उससे कंज्यूम हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं सामान। तो करप्शन डायरेक्टली इन्फ्लेशन लाता है पहले, इट्स नोन फैक्ट। करप्शन ज़्यादा कीजिएगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगा। तो एक तो वो लाइन है ही, और चलो उसको मान लिया, हम कौन होते हैं कहने वाले कि करप्ट है नहीं करप्ट है, कैसा है कैसा नहीं है। बट उसके बियॉन्ड भी जो लोग बातें करते हैं वो प्योर सोशलिज्म की बातें करते हैं, वो लोग कभी, और जिस तरह से वो बातें करते हैं एकदम लगता है कि इंडस्ट्री के तो इतने एंटी है, पूछिए मत, राइट। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि वो कितना खराब कर सकते हैं इंडस्ट्री का, पर आप बस सोशलिज्म कीजिए और इंडस्ट्री का प्रमोशन नहीं कीजिए तो उसी में इन्फ्लेशन में मर जाइएगा, राइट। तो ग्रोथ नीचे आएगा, इन्फ्लेशन भागना स्टार्ट होगा। ये इनएविटेबल आउटकम है। अगर जो करंट अपोजिशन है जिस तरह की बातें करता है उस तरह की पॉलिसी वो अगर करने लगे तो जो अभी हमारे को मिल रहा है कि ग्रोथ भी हो रहा है, इन्फ्लेशन भी, कोविड के बीच इंडिया का इन्फ्लेशन यूएस से भी कम था। ऐसा कभी नहीं होता, यूएस का इन्फ्लेशन 2% होता है, इंडिया का इन्फ्लेशन 12% होता था, और यहाँ इंडिया का 4-5% था, यूएस का 6%, राइट। तो इन्फ्लेशन भी कम है कंपैरेटिवली, ग्रोथ भी हो रही है, ये बैलेंस तो लूज कर जाएगा। ये लूज करा तो ये दिस वुड बी अ बिग इकोनॉमिक ड्रॉबैक इन दैट सेंस। सो मेरे लिए करंट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रीजन व्हाई दे कीप कमिंग बैक, बार-बार इलेक्शन में वापस जीतते क्यों है, यही है कि ये लोग इंडस्ट्री भी देखते हैं, उससे पैसा भी निकालते हैं, इन द सेंस पैसा भी जनरेट करते हैं, और वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट सोशल प्रोग्राम में डाल के मोदी स्कीम से थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चैनल उनका बहुत ही क्लियर है। यूपीए गवर्नमेंट का बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोग, जनरेट करेंगे। और इफ यू गो टू इंडिपेंडेंस में जाएंगे तो नेहरू जी का व्यू तो प्योर सोशलिस्टिक, इसलिए टिल 1990 तो कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, और 1990 में नरसिम्हा राव जी ने खोला मार्केट, बहुत बढ़िया काम किया, तो उससे इंडस्ट्री का तो खूब हुआ, और उन्होंने सोशल प्रोग्राम से कम कर दिया, तो इसलिए इलेक्शन में हार गया, राइट। ये बैलेंस जो है करंट गवर्नमेंट का एक्सेप्शनल है। आई थिंक वर्ल्ड ओवर में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का बैलेंस जैसा होना चाहिए वैसा कहीं और नहीं है इंडिया के अंदर। वेरी वेरी सर, मुझे पता है मैंने कहा था कि कुछ आखिर के सवाल हैं। एक सवाल मन में आया है जो मैं पूछना चाहूँगा, जो ज़्यादातर लोग बात करते हैं, न्यूज़ डिबेट्स में इसके बारे में चर्चा की जाती है, मुझे आपका टेक चाहिए इस पर, कि ऐसे कहा जा रहा है कि जो सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, उन्हें जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट का पूरे तरीके से उपयोग नहीं कर पाए, और ये जो पावर मिला है, जैसे आपने कहा कि बहुत रेयरली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखा गया जहाँ पे इतना ज़्यादा पावर मिला है, और शायद से फिर ना मिले। तो क्या गवर्नमेंट ने अपने जो मैंडेट है, नॉट नैरेटिव, जो मैंडेट उनको मिला था उसका पूरा उपयोग किया, या और भी कुछ कर सकती थी? सो हमारे माइथोलॉजी कहो या कल्चर में हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान है और शिव भगवान है ना, क्रिएटर, प्रिजर्वर, संचार करने वाले, और डिस्ट्रॉयर। शिव भगवान हमारे डिस्ट्रॉयर। तो शिव भगवान जनरली सबसे ज्यादा काम रहता है हमारे विष्णु जी का, इसलिए उनका अवतार ले लेके आते रहते हैं वो, है ना। क्रिएटर साहब ब्रह्मा जी तो एक बार बना दिए, और डिस्ट्रॉयर साहब आएंगे जब कुछ नहीं चल पा रहा तो हम आके डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। बट मेन काम विष्णु जी का होता है, और विष्णु जी का काम बहुत ट्रिकी काम किया, यू नो, मोर ट्रिकी देन ब्रह्मा ऑफ क्रिएशन और शिव जी का। ऐसे क्यों? क्योंकि उनको सस्टेन करना है और सही भी करने का, मतलब उनको रिफॉर्म करने का है बिना डिस्ट्रॉय किए, यू नो। क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय करके रिफॉर्म लाते हैं तो अच्छी चीज भी खत्म हो जाएंगी, फिर आपको रिसेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। जो कि हो सकता है ऐसा मौका भी आए कभी जब शिव भगवान बोलेंगे अब तो यार सब खत्म है, कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, तो फिर अब तो खत्म ही सब, यू नो, प्रलय ही आएगा। बट जब तक वो सिनेरियो नहीं आता है, अगर आपको प्रिजर्व करते हुए रिफॉर्म करना है तो वो टास्क में आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया का सिस्टम जैसा भी है करेंटली वर्थ प्रिजर्विंग? 140 करोड़ लोगों को चला तो रहा है ना। करप्शन बहुत डीप है। मेरे से ज़्यादा क्रिटिक ऑफ इंडियन एग्जिस्टिंग सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन तो इतना घुस गया है अंदर लोगों के नस में कि पूछिए मत। दिस इज माय पर्सनल पेट पीव। ये है बहुत सारी खराबियाँ, डिस्क्रिमिनेशंस, दिस दैट, बट 140 करोड़ लोगों को चला रहा है।
इसको आप डिस्ट्रॉय करके कुछ करना चाहेंगे तो पहले 140 करोड़ में से 30-40 करोड़ मर जाएंगे उस प्रोसेस में, तब मे भी कुछ कमी कर रहे हैं, आधी पॉपुलेशन हो सकता है मर जाए, खाना ही। अब केजरीवाल साहब आए थे स्टार्टिंग में, जब उनके पास जो है सो एसी भी था, एंटी करप्शन ब्यूरो था, तो उनका तो वादा था कि हम अंबानी साहब को गिरफ्तारी कर देंगे, और आई थिंक बोले भी है कहीं, और मिल जाता पावर उनको और गिरफ्तार कर लेते अंबानी साहब को, तो फिर तेल कौन देता? आपने तो गिरफ्तार कर लिया अंबानी साहब को फॉर जो भी इल्जाम लगा के, पता नहीं गिल्टी नॉट गिल्टी व्हाटएवर जो कराए, तेल इधर से कहाँ आएगा? और तेल नहीं आएगा तो इकोनॉमी का क्या होगा? खाना कैसे पहुंचेगा? मेरे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे ना। यू कैन डू दिस इवन इफ बाई फार इंडस्ट्रियलिस्ट को मान लिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सबसे खराब चीज होता है, यू कांट डू दिस, दे आर सर्विंग अ पर्पस, दैट्स व्हाई दे आर देयर। तो ये काम करना कि डिस्ट्रॉय करके उसके फिर जो बचा है उस पर हम राजा बन के रहते हैं, बहुत इजी काम, राइट? बट रिफॉर्म विदाउट डिस्ट्रक्शन, विच इज अ वर्क of the phenomena of Vishnu, that is the real job without doing, right? So when you say mandatory hai, and what I like about Modi ji is he has done tremendous reforms, right? अभी हम बोले ब्यूरोक्रेसी करप्ट होता है, सारे 10,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया में, सबको जेल भेज दो, बंद कर दो, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, वो चिट्ठी पत्री ही बंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा करता है पर चला तो रहा है सिस्टम ना, खत्म ही हो जाएगा, राइट? तो क्या कर दिए वो डीबीटी लेते हैं, तुमको ये साइड ही कर दी, टेक्नोलॉजी लाए तो करप्शन, आधा करप्शन तो उधर से कर दिया, राइट? वीआरएस लेते हैं, लोगों को रिटायर कर रहे हैं, और जो लोग एक्सेसिव करप्ट है उन पे केसेस भी जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, राइट? बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। एंड पीपल से कि आप इतना इल्जाम लगाते हो पुराने पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ये हैं वो हैं, तो जेल क्यों नहीं भेजते? अगर मैं बिना लॉ के उसको जेल भेजूं तो क्या सिस्टम चल पाएगा? शायद छूट जाएंगे, वो तो अलग बात है, पर मान लिया कि मैं इतना बड़ा डिक्टेटर हूं, मैंने बंद कर दिया तो अंदर में आपको जहर देके मैं मार ही दूंगा, पर सिस्टम ऐसे चलेगा क्या? नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। मैं जेल भेजूंगा, सिस्टम से ही भेजूंगा, सारा फाइल्स निकाल के ही भेजूंगा, वो फाइल निकालने में 10 साल लगा तो 10 साल लगा, नो प्रॉब्लम, राइट? सो व्हाइल पीपल माइट क्रिटिसाइज दैट ही हैज नॉट यूज्ड द मैंडेट, करंट गवर्नमेंट अपना मैंडेट यूज नहीं किया है जिस तरह का मैंडेट था उनके पास, मैं ये कहता हूँ कि जिस कंडीशन में इंडिया था, इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए सारी शक्तियाँ चाहिए, और स्पेशली अगर आप रिफॉर्म विदाउट डिस्ट्रॉय के कर रहे हो, विच इज़ द रियल वर्क, एंड आई थिंक करंट गवर्नमेंट हैज़ डन फेयरली गुड जॉब इन डूइंग दिस। सो आई एम ऑल फॉर गिविंग, उनको समय दो, अच्छा काम करते रहे ना, डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब डायरेक्शन कितना तेजी से जा रहा है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तेजी बढ़ती भी है। तो वन ऑफ माई मेरे को जो लगता है कि अब के बाद चूंकि इतना समय बीत चुका है, इतना डीपली इनग्रेंड करंट गवर्नमेंट करंट सिस्टम में हो चुकी है, उसकी पावर टू रिफॉर्म द सिस्टम ही काफ़ी बढ़ चुकी है, ओके, राइट? इनफैक्ट आप इलेक्शन में ही देखोगे, मोदी जी काफ़ी सारा बोल रहे थे कि इस बार मैं ये करूँगा, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करूँगा एंड स्टफ लाइक दैट। कम सीट्स हैं, बट आई सस्पेक्ट वो करेंगे, बिकॉज सीट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप सिस्टम में कितना अंदर तक घुस चुके हो, आप सिस्टम को कितना समझ चुके हो उसको रिफॉर्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय नहीं करने का। तो आई थिंक ये 10 साल में करंट गवर्नमेंट डीप इनफ पहुंच चुकी है, एंड इसलिए कैबिनेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे न्यू गवर्नमेंट आने के बाद, कि वो डिस्टर्ब करना हो जाता सिस्टम। तो आई सस्पेक्ट कि आप देखोगे सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स आने स्टार्ट होंगे ये टर्म में, नॉट टू फार, और बहुत दूर तक जाएंगे। भारतीय न्याय सहायता कोई छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं, ऑलरेडी बड़ा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट मैं ऐसा व्यू नहीं रखता हूँ कि उन्होंने अपना मैंडेट डिस्ट्रॉय किया। व्हाट दे हैव डन इज करेक्ट। ठीक है सर, कंक्लूडिंग क्वेश्चन है कि जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, जब भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि हर लीडर का एक काम होता है कि अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके जो जिनका दायित्व उनको मिला है उनको एक डायरेक्शन दे। और बहुत रेयरली होता है जब किसी देश के प्रधानमंत्री जो है वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको यहाँ जाना है। और विश्व गुरु बनने वाला जो एक मैं इसे कहूँगा कि एक फरमान जारी किया है कि हमको बनना है वहाँ पे, हमको वहाँ जाना है और हम बन के रहेंगे। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है?
सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि तो सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। नहीं go ahead. मुझे ये इसीलिए ये सवाल आया क्योंकि जब ओबामा अपना एक स्पीच दे रहे थे इलेक्शन से पहले तो उन्होंने कहा यस वी कैन, राइट ठीक है, और ये यस वी कैन का जो नारा है वो अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले गया। करेक्ट। तो वैसे ही जब विश्व गुरु का एक नारा दिया गया है तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? नहीं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें काफ़ी सारे इस पे थिंग्स आ सकते हैं। पहला तो ये कि हमें विश्व गुरु बनना है, वी आर, लोग को उनकी एस्पिरेशन से उनका डेफिनेशन आता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो एंटी आइडियोलॉजी वाले तो उसे काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं, यहाँ पॉटहोल भी होगा तो बोलेंगे देखो बन गए विश्व गुरु तुम, हाँ यहाँ तो गड्ढा है। एनीवे, बट एस्पिरेशन रखना तो सही चीज़ है ना। इफ आपको एस्पिरेशंस नहीं है तो आप जाओगे किधर? जी, तो आप कुछ नहीं करोगे। एस्पिरेशंस नहीं है, अनएस्पायरिंग है, क्या कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, सो रहे हैं, वाह दिक्कत वाला काम। पर एस्पिरेशन कैसा है ये भी बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। अब आप करंट सुपर पावर रखिए यूएस का, तो यूएस का एस्पिरेशन क्या है? तो यूएस बोलता है वी आर वर्ल्ड्स पुलिसमैन, मैं दुनिया का ठुल्ला हूँ। तो ठुल्ले जैसा काम भी करता है, जहाँ देखो डंडा लेके पहुंच जाता है। उसका किसी ने इनवाइट किया कि नहीं किया, घुस के बोलेगा तुम्हारे पास तो ये है, मैं तो डंडा चलाऊंगा, और सारा कुछ डिस्ट्रॉय करके निकल जाता है, चाहे उसके पास वो था या नहीं था, है ना। वो पुलिसमैन गिरी टाइप का करने में है ना, वो उसी ट्रैप में ऐसा फंसा हुआ है कि आधा चीज़ें जो दुनिया में हो रखी हैं गड़बड़ कैन बी एट्रीब्यूटेड कि यूएस ने कुछ यहाँ आके कुछ करके चला गया, है ना। वार्स तो लगे ही हुए हैं दुनिया में। तो एस्पिरेशन स्टार्ट्स, आप कहाँ जाने वाले हो, किस तरह के आदमी हो, ये आपके एस्पिरेशंस आपके बारे में बताते हैं, राइट। हमारा एस्पिरेशन है विश्व गुरु का, राइट। हमारा एस्पिरेशन तो जब अगर हम सुपर पावर बनते हैं, लगता है बनेंगे हम लोग, इस सेंचुरी लाइकली भारत की ही सेंचुरी है, अगर हम अनलाइकली ये सेंचुरी में हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे, भारत का सेंचुरी कहा जा रहा है इसको, अगर हम सुपर पावर बनते हैं तो हमारा जो इनहेरेंट एस्पिरेशन है वो बाहर आएगा। हमारा इंस्पिरेशन है नॉट ऑफ बिकमिंग अ पुलिसमैन, वो पुलिसमैन नहीं बनना है दुनिया, हमें दुनिया का विश्व गुरु बनना है। हमें दुनिया के लिए आगे का डायरेक्शन तय करना। हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारे घर में तुम क्या रखे हो, रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम पे हम लॉ लेते आएंगे, तुम पे हम डंडा लेके पहुंच जाएंगे, न, हम आपको गाइड करेंगे, राइट। सो दिस एस्पिरेशन, हैविंग दिस एस्पिरेशन एक्चुअली शेप्स द काइंड ऑफ सुपर पावर, जिस तरह का सुपर पावर हम लोग बनना चाहते हैं। सो वेरी गुड एस्पिरेशन टू कंपेयर टू जो दूसरों का होता है, राइट। विश्व गुरु बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इन सर्टेन एस्पेक्ट तो ऑलरेडी हैं हम लोग, बिकॉज आप देखिए इंडिया, भारत बाय द वे, ये माइक्रोकॉज्म है वर्ल्ड का। माइक्रोकॉज्म कैसे है वर्ल्ड का? तो भारत एकमात्र देश है जहाँ सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड के जो भी रिलीजन है सब भारत में। इनफैक्ट एक दो रिलीजन आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो क्या बहुत ज़्यादा रिलीजन ऐसे मिल जाएंगे जो वर्ल्ड में नहीं है पर भारत में, राइट। सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं भारत में, सारी आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं भारत में, राइट। इनफैक्ट ऑफ नॉट हिंदुइज्म का ही नहीं, दूसरे के भी कई सारे पंथ, जितने पंथ दूसरे रिलीजन्स के इंडिया में हैं और जितने पंथ दूसरे रिलीजन के इंडिया से निकले हैं, किसी और देश में नहीं निकले हैं वहाँ से। इट इज़ इंडिया ही जहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब रिलीजियस थॉट में तो डेफिनेटली हमारा कंट्रीब्यूशन बिग रहा है। देयर हैज़ बीन सीरीज ऑफ साधु संत हैं जो गए हैं विवेकानंद से लेके एंड स्टफ लाइक दैट। किसी का भी फोकस कन्वर्जन पे नहीं रहा, सारे का फोकस रहा है लाइफ कैसे लीड करनी है, हिंदुज्म क्या कहता है एंड स्टफ लाइक दैट। अगर विवेकानंद जी चाहते कन्वर्ट करना तो कितने लोग कर चुके हो जी, उनका एम नहीं था। तो हमारा एम ये नहीं है कि हम आपके साथ कुछ करेंगे, हमारा एम ये है कि हम आपको गाइड करेंगे। ये ऐसा ही होते ही आया है इन दैट सेंस, राइट। आप उससे भी आगे बढ़ के देखो, जिस तरह का सोशलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस होता है, जिस तरह से हम लोग देते हैं, जिस काइंड ऑफ सोसाइटल जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इंडियन सोसाइटी में, उसके कंपेयर टू क्राइम्स एंड राइट्स वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। देयर इज नथिंग। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ, तो हर दो घर के बाद द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, द नंबर ऑफ रिलीजन, एक सिटी में, बॉम्बे में कितने सारे, क्या नेबर आपका क्या स्पीक करते हैं, उसकी क्या आइडियोलॉजी, क्या पूजा करता है, सब इंटायरली डिफरेंट होता है। पर यहाँ मार काट उस तरह से मचती नहीं है जिस तरह का
इंग्रेडिएंट्स यहाँ मौजूद है, तो कैसे साथ में रहना चाहिए ऑलरेडी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। और ये तो ऐसे कॉन्वर्जेशंस है जो चलते रहे, कभी ख़त्म नहीं होगा, पर हमेशा एक टाइम लिमिट होता है। तो आपसे फिर कभी इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप हमारे शो पे आप वापस आएंगे और इस टॉपिक पे और बातें करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे। तो अगर आपके कुछ सवाल है तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखें, हम इस पे जो है वो ध्यान देंगे और उन क्वेश्चंस को अगले पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वेट करिए, और भी नए कंटेंट आने वाले और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू द ऑडियंस।